કાકા બાપ દાન રામ રામ। હું તમારી બસમાં આવી ગયો મુકેશ પરમાર। ખબર લઈને વાત કરી લઈ કે હા આપણા ઝાપા જિલ્લામાં એક અલગ તરફથી લોકો કોરોનાની દવાના ઈલાજ કરવામાં દેખાઈ રહ્યા છે। કેવી રીતે તમને હું બતાડું કે ઝાપા જિલ્લામાં એક પરંપરા છે કે તેના ડોક્ટરની ભાષામાં તેના અંધવિશ્વાસ કહે અને કે કઈ ના કે ટાઇફાઇડની બીમારી થાય યા ટાઇફાઇડની કોઈ બુખાર આવી જાય યા શરદી ખાંસી આવી જાય યા માથું સડે તાવ આવે તેની દવાનો ઈલાજ કરવા હારું એક તમુન દેખાઈ રહ્યા હોય એ ટાઇફાઇડની ઈલાજ કરવા એક દોરા ધાગા આ નીની પર પેલી એની પોટલીઓ બાંધે પોટલીઓ અને કે જે જડીબુટી છે જે જડીબુટી છે જડી રહી છે તેની જડીબુટીના કારણથી કે એનથી ટાઇફાઇડ છે જેમ જેમ ટાઇફાઇડનો બુખાર ઉતરે યા કમ દવા બીમારી કમ થાય તેમ તેમ તેઓ દોરો લાંબો થતો જાય। એની હારું ડાક્ટરની ભાષામાં કહે કે એના ટાઇફાઇડના ચક્કરમાં યા અંધવિશ્વાસના ચક્કરમાં આ લોકો ઈહુની પર વધારે ભરોસો કરવાથી કારણથી કોરોનાની બીમારી વધારે વધી રહી છે। અને તેમાં હું જબ તેના ફેફડામાં યા સાહ લેવામાં દિક્કત આવે એની બાદ ત્યાં ડોક્ટરમાં ઈલાજ કરાવવા આવે તો હું દેખાઈ રહ્યા હોય એની બધી તસવીરોમાં કે બધા ડોક્ટરમાં યા મરીજ છે એ કોરોનાથી પીડિત છે અને કોરોના થઈ ગયા હું કોરોના વાયરસ છૂટી ગયો એની બાદ બી ટાઇફાઇડની દોરા ધાગા કરાવી રહ્યા કે ભાઈ એ ટાઇફાઇડ છે અને એના કારણથી अस्पताल जाए तबियत जब वधारे थी जाए दिक्कत आवे फिर त्या सरकारी अस्पताल में जाए दवा करावी रहा तो ता तक कोरोना नी कंट्रोल नहीं करी सके क्योंकि तीन स्थिति गंभीर थी जाए एनी बात त्यो जाळवा मंडे कि हाँ यार हाफ जाळवी कोरोना वायरस कंट्रोल करी पाड़ू तो हेवी घड़ी में जब स्थिति अपना शरीर में वधारे बीमारी फैलाई जाए और फिर आप अस्पताल में जाऊँ तो डॉक्टर भी कीधे हाफ एकदम स्थिति वधार थी गई ते तू हाव आयो पहलो समय रहती केम नहीं आयो। तो जिला अस्पताल झाबवा में तमुन देखाई रहा है या मरीज घना से या हजू कोरोना वायरस वाला से पर ये पेली दवा लगाड़ी रहा कहीं नहीं पेली टाइफाइड नहीं एम की क्योंकि हमने कोरोना और टाइफाइड एक जैसो लागी रहो मतलब एक हरकू बे बराबर लागी रहो लोग कि माथु पहला थी दुखे ताव पहला थी आवे तो घना टाइफाइड थी खतरी रहा पर घना तीना चक्कर में टाइफाइड ने भरोसे रहा घना हूँ के या बड़वा के हेली नहीं ले टाइफाइड थी भी एनी दवाईओ लगाड़वाथी थी भी घणो हदरी रू तो हा बे कोड़ी से कि अहीना कारण थी हदरी रू कि अहीना कारण थी हदरी रू ये विचार करवा वाली बात है। तेनी हारू पेला सरकारी जे साइंटिस्ट भाषा आन जे डॉक्टरनी भाषा में के कि अंधविश्वास ना भरवा बठा अपना भील भाई आन इना चक्कर में लेट थाई रहा आन समय पर इहुन दवा नहीं मળી रही तेनी हारू कारण थी यू बीमारी गाँव में વધારે ફેલી રહી સમય રહેતો અને જેટલી જાળવ હો જેવો જાગૃત રહો તેવી નમૂન દુઃખમાં મનમાં કંઈ થાય રહ્યું યા બીમારી તમારા શરીરમાં થાય રહી તે ઘડી તમે ડૉક્ટરની સલાહ લઈ લો માથું દુખી રહ્યું તાવ આવી રહ્યો કે બુખાર આવી રહી તે ઘડી જેવું તમને લાગે તે ઘડી તમને જઈને अस्पतालમાં જઈને જાંચ કરાવવું જોઈએ ચેક કરાવવું જોઈએ તાકી તમારી અને અમારી બધાની મનની શંકા દૂર થઈ શકે પર તમે પેલા टाइफाइड न चक्कर में कि भाई टाइफाइड बुखार से हेवो ने हेवी संक्रमण कोरोना नो संक्रमण जो लक्षण से त्या भी हेवा ने हेवा और टाइफाइड ना भी थोड़ा बहुत મળ્યા जुला तो तीन मन में लोग लगे रहे कि टाइफाइड थी रो मन तो हाथ पाँव दुखी रो माथु दुखी रो हल्को हल्को बुखार આવી રહ્યો तो एम बे टाइफाइड बुखार और कोरोना बे लक्षण एक रखा थोड़ा बहुत આગળ પસર છે પણ લોકો ટાઇફાઇડ પર ભરવા વધુ કરવા માંડી રહ્યા અને ત્યાં દોરા ધાગા કરવામાં ટાઈમ લગાડી રહ્યા ત્યાં કોરોના આપણા શરીરમાં વધારે ફેલી રહ્યું એની ફેર કંટ્રોલ નહીં કરી રહ્યું એની હારું આજ હું ઝાપવાના अस्पतालમાં ડોક્ટરોને પૂછ્યું તો ડોક્ટરોએ બી એમ કીધું તેમાં આપું તમને દેખાઈ રહ્યા છે મરીજ બી ઘણા માળા પહેરી અને કોરોનાના પેશન્ટ છે કોરોનાના વાયરસ છોટેલા અહીંયા लोकू से ते इहुनी हारू खुद डॉक्टर भी कीधु कि इना पर भरोसा करवा मांड्या एतरे या मोड़ू थई जाए और फिर हम पेला जे दवा बनावा वाला जे ये टाइफाइड नी दवा बनावे या दोरा धागो बनावे तीना भी मुझे पूछ्યું તે ત્યો કે આવી આવી માત ને ઇનથી કોરોના भी नहीं जाए तो આવી कूनी खरी कूनी खोटी तो आपण बेहूनो भरो मत करो अगर करता भी हो तो बेहूना भी भरो करें पर अस्पताल में जाए इलाज भी समय समय पर कराई लेवू जांच कराई लेवू कहीं भरो है नहीं રહેવાનું કેવી રીતે હું મુકેશ પરમાર તમારી બસમાં હીરેની ખબર લઈને આવતો રહી અને ટાઇફાઇડ ને ભરો भी मत रहो
કોરોનાની બી જાંચ કરાવવા જરૂરી છે કે અગર તમારા મનમાં લાગેલું ટાઇફોઇડની જાંચ કરાવે તે બી જાંચ કરાવી લો, બે કરાવી લો, પણ દવા બેહુની બરાબર લેવાનું શરૂ કરી દો તાકી અગર ટાઇફોઇડ બી હોય અગર કોરોના બી હોય તો જાળવેલું હોય. તો એવી રીતે હું તમારી બસમાં મુકેશ પરમાર ફેર એવી રીતની ખબર લઈને આવતો રહી. કાકા બાબદાન રામ રામ. सर बाजार में सर्दी खांसी बुखार की ये जो माला बना के बेची जा रही है, टाइफाइड की माला बना के बेची जा रही है, ये कितना कारगर है, ये सही है या साइंटिफिक हिसाब से ये कैसा है? तो बहुत सारे अंधविश्वासी के उसी के उसमें रहते हैं और फिर लास्ट स्टेज पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं. उनकी सांस लेने की क्षमता बहुत कम और उसमें माला भी 3 से 4 प्रकार की मालाएं बांध के हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे भर्ती हैं और माला बांधने के बाद भी उनकी डेथ हो रही. मेन कारण ये है कि क्या करते हैं, कुछ इनिशियल स्टेज में सही गाइडलाइन का फॉलो नहीं करते और ये अंधविश्वासी के उसमें चले जाते हैं. हम माला बांधे या ना बांधे पर अपने जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और जो गाइडलाइन उसका फॉलो करना चाहिए और ज़्यादा दिक्कत होने पे अस्पताल आना चाहिए. हम ये नहीं बोल रहे कि आप वहाँ कभी मत जाओ, आप जा रहे हो पर आपको जो दिक्कत है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा. सर राणापुर ब्लॉक के धामली चमना और कालापान में वैक्सीन लगाने टीम गई थी, उनने कहा था मुझे ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम तो सही है, तो आप क्या समझाए उन्हें इससे? वैक्सीन के लिए बहुत सारे समझदार लोग भी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन के बाद भी हमको कोरोना हो रहा है ये बता रहे हैं. कोरोना हो सकता है पर जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी, वो कम होती है. हमारे डॉक्टरों में कम से कम हमें सेकंड डोज लगने के बाद 12 से 13 डॉक्टर और सिस्टर भी 15-20 सिस्टर हुए हैं पर किसी को कुछ नहीं, वो वापस अपने काम पे लौट आए हैं. तो इस अच्छा उदाहरण है कि उनको किसी प्रकार की कोई ज़्यादा सीरियस नहीं हुए और अपने काम पे वापस लौट आए. तो ये वैक्सीन लगाने का थोड़ा सा फीवर आता है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लो और सेकंड डोज होने के बाद भी अपना दवाई लो और जब कोविड होगा भी तो उनकी मृत्यु दर कम होगी, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, हो सकता थोड़ा बहुत प्राइमरी ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक हो सकते हैं. तो ये वैक्सीन तो सभी को लगाना ही है, कंपलसरी है और जितना ज़्यादा एक दूसरे को आप पॉजिटिव वो दो तो ज़्यादा अच्छा है. ग्रामीणों में मेन डर किस बात का है वैक्सीन को लेकर? बहुत सारे ग्रामीण में तो इस बार का कि जैसे जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे और उल्टा चीज़ करते हैं. जैसे अभी वैक्सीन लगाने से हमको तो फीवर आ रहा, बुखार आ रहा, वैक्सीन के बाद हमको कोरोना हो गया और हॉस्पिटल आएंगे तो हमको कोरोना की जांच निकाल देंगे और हमको भर्ती कर लेंगे. हमको किसी चीज़ का हम उनसे ज़्यादा हम परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर लोड ऑक्सीजन बेड भी नहीं है, बहुत हम ओवरलोडेड हैं, हम 24 काम कर रहे हैं. हम तो ये चाहते हैं कि भाई सही टाइम पे अगर सही डिसीजन हो, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, आपको हम वार्ड में भी ले जाके दिखाएंगे. सही टाइम पे आप आओगे तो सही डिसीजन पे डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और जो हमारे पास एंड स्टेज पे आ रहे हैं जिसका सेचुरेशन 70-80 है तो उसको तो फिर हम क्या ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है. हम बहुत कोशिश करते हैं तो नहीं बचा पाते हैं. तो उसी का इनको डर रहता है कि भाई अस्पताल में तो कुछ होता नहीं. अभी ओवरऑल रेशियो निकाले तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है और टाइम पे अगर आओ तो दिखाओ. और कुछ चीज़ें ऐसे क्या होता है कि अपने उसके हिसाब से सीटी करवा लिया या कहीं इधर उधर दौड़ते रहें. आप सबसे पहले आपको अगर फीवर आ रहा कंटिन्यू तो टेस्ट कराओ और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करो और अगर सीटी के लिए बोले तो सीटी करवाओ और उसकी गाइडलाइन के हिसाब से उसका सांस लेने की क्षमता 90 से नीचे हो तो आप एडमिशन लो और डॉक्टर की सलाह लो. सर आपका नाम? डॉक्टर सावन चौहान, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झाबुआ.